ज़्यादा है इतना तो कह सकते हैं। कितना ज़्यादा है, बिकॉज वी डू नॉट हैव ए फॉर्मल स्टडी अबाउट दैट, बट व्हाट वी हैव आवर एक्सपीरियंस after coming for so many years, particularly food pipe cancer, gastric cancer, stomach cancer, gallbladder cancer, and then the rectal cancer. These are some of the cancers which are very, very common here. Probably related to, obviously, the nature of the lifestyle, what the people have here, both in terms of the smoking habits, to some extent, the prevalence of alcohol consumption, and also there are issues related to reflux. So a lot of people, I mean, people they have this reflux esophagitis. You have the sour eruption in your mouth because your bile is coming back to your food pipe, and that is one of the reasons why the food pipe cancer is likely to be more, and that's what we are witnessing as well. But it's hard to say or to pinpoint exactly why it is unless we have some formal study about that, both in terms of number as well as reason. But overall, incidence is definitely higher than what we can say for the national average. So this is your first time visit or you have visited? I have done that. This is, I think I am coming here for fifth time. ओके, ऐसे लद्दाख में ऐसे केसेस है कि कैंसर लाइक एट द एंड लास्ट स्टेज पे Correct, correct, पहुंचते हैं। correct. सो इससे पहले हम किस तरह से अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं या अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं कि जब ऐसा कोई सिम्टम्स हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए करके? सबसे बड़ी बात है कि इट्स जो लोगों के बीच में अवेयरनेस है, जो उनके नॉलेज है about particularly awareness about cancer symptoms, and why something which can be a cancerous symptom, if you do not know about that, you will just keep treating like any other disease or something. And that goes not only part of the general public but also on the part of general physicians as well here, so that they have awareness about what are the early symptoms of the disease, and early investigation can be instituted. The biggest problem is that people who are lying or living in the far-flung areas, they have their own problem of coming to Leh, which is the biggest center for Ladakh, and till the time they come here, also because of weather conditions or because of the socioeconomic status, by the time they come here, symptoms have progressed so much that yes, that's true, and you were right that almost vast majority of them will be in very advanced stage. Many a times we are not in a position to offer them curative treatment, and the best thing is to increase the public awareness about that through mass media, through village level, through college level, so that at least people are aware about that. Once you are aware about your symptoms, at least you will go to doctor. You will not neglect it. That's what the problem biggest is. डायग्नोसिस का स्टेटस क्या बता सकते हैं सर? कितना इक्विप्ड है यहाँ पे डायग्नोस्टिक की एक मतलब पेशेंट जब उसके अपने लिमिटेशंस हैं, उसके अपने लिमिटेशंस हैं, इसलिए क्योंकि कई सारे डायग्नोस्टिक जो चीज़ें वो टेस्ट हैं या फिर इंटरवेंशन है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। उसके लिए यहाँ से या तो दिल्ली भेजना पड़ता है जांच के लिए, चंडीगढ़ भेजना पड़ता है, या दूसरे सिटीज़ में भेजना पड़ता है। एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं, जैसे फूड पाइप का कैंसर है या फिर गैस्ट्रिक कैंसर है, except Leh, we do not have the availability of endoscopy. अब उसके लिए जब तक से आप एंडोस्कोपी और बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं कैंसर को। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ सीटी स्कैन या फिर एक अच्छा अल्ट्रासाउंड, इट मे बी देयर इन ले बट नॉट इन जांस्कर, नॉट इन लुब्रा, नॉट इन different places or Kargil or so. So to the extent what we have similar for MRI, or also there is one investigation which is particularly used in cancer patients, something called PET CT, PET scan. And PET scan is something which is a very frequently used investigation, and we do not have it here. And certainly for all the cancer patient, that is a basic investigation. उनके मॉनिटरिंग के लिए चाहिए कि किसी को वापस कैंसर हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर कैंसर सस्पेक्टेड है तो कहाँ तक फैला हुआ है, वो सब देखने के लिए। उसके सिवाय कई सारे एडवांस टेस्ट हैं पैथोलॉजी के जो कि अवेलेबल नहीं है। सो वी नीड ए वेरी गुड पैथोलॉजी लेबोरेटरी, वी नीड ए वेल इक्विप्ड biochemistry laboratory, but more important is that you may have laboratory,
but you cannot run it unless you have equipped personnel. So you can have a big building, but unless there are people to run that, so we need to increase the number of people who are trained in all these tests so that they can come here and they can start the test at basic level, and then you can advance it further, because putting a test is one thing, but doing it correctly and running it perfectly, that requires expertise, and that's what we are trying to collaborate with the SNM hospital, trying to train them, trying to impart the at least the advanced knowledge about that, how to deal with such kind of patients, and slowly that transfer can be done so that people are at least availing their services here only. सर ये कैंसर की कौन सी स्टेज इस मतलब प्योरली क्योर हो सकता है, जैसे फर्स्ट से सेकंड से जैसे? कैंसर के टोटल 4 स्टेज होते हैं, जी सर। 1 से लेकर 4 तक आप कह लीजिए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या जापान वगैरह में, जो कि पहले स्टेज से पहले भी उनको पकड़ा जा सकता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग। सो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इस एरिया में फूड पाइप का कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादा होता है, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी भी जाकर हम जांच करते हैं, और कई सारे लोगों में वो अर्ली स्टेज में मिलता है, इतने अर्ली स्टेज में कि जिसकी वजह से आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, और जब तक से आपको सिम्टम बनेगा इसका मतलब बीमारी एटलीस्ट सेकेंड स्टेज तक आ चुकी होती है। सो उसके पहले उसे पकड़ने के लिए ये सारे स्क्रीनिंग के तरीके होते हैं। चौथे स्टेज में जाकर उसका मतलब होता है कि बीमारी शरीर के कई सारे भागों में फैल चुकी है, और शायद उस स्टेज में उसका क्योर संभव नहीं हो पाता है। पहले 3 स्टेज में बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सर स्क्रीनिंग कितना मुश्किल है कि मतलब लोग एज्यूम करते हैं कि कैंसर का स्क्रीनिंग जब करते हैं तो फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इज इट? ऐसा नहीं है, एक्चुअली कैंसर का स्क्रीनिंग उसी पर्पज के लिए बनाया गया है कि सो दैट यू कैन डिटेक्ट इट एट अर्ली स्टेज। इट माइट नॉट बी द फर्स्ट स्टेज, इवन इफ इट इज सेकेंड स्टेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एबल टू डिटेक्ट दैट एट फर्स्ट स्टेज, और ज़्यादातर में एक्चुअली उससे भी पहले आप पकड़ पाते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल, ब्रेस्ट कैंसर, यू हैव 1 सेंटीमीटर मास समवेयर, यू आर नॉट एबल टू फील इट, लेडी इज़ नॉट एबल टू फील वो अंदर में उसके गांठ है कि नहीं है, लेकिन एक मैमोग्राम हो या एक अच्छा अल्ट्रासाउंड हो, उसको आप पकड़ सकते हैं, और बिना किसी सिम्टम के आप उसके बाद तुरंत उसकी सर्जरी से सिंपल क्योर हो सकता है। और इसमें फ़ायदा ये है कि सिर्फ एक तरीके से उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसमें ना तो कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे उतने ही कम खर्च में, कम टाइम में, और उतनी गारंटी के साथ उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। लद्दाख से काफ़ी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन किस किस तरह के कैंसर के पेशेंट्स आपने ट्रीटमेंट किए? ये जैसा मैंने बताया आपको कि जो इस एरिया में ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो एक तो फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, रेक्टल कैंसर, और या गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जो हैं ये ज़्यादा यहाँ पर कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप नेशनल एवरेज से देखेंगे तो ये 3-4 जो कैंसर हैं वो नेशनल एवरेज से कहीं काफ़ी ऊपर की तरफ है, और यही पेशेंट दिल्ली में भी आते हैं जो इलाज के लिए। सर एक कैंसर पेशेंट के लिए साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है कि क्योर आने में? देखिए, साइकोलॉजी का स्ट्रांग होना नहीं होना काफ़ी हद तक उसको आपको सही जानकारी के ऊपर भी निर्भर करता है। उसके बाद आपको जब तक सही नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आप अपना ओपिनियन या अपना मन नहीं बना पाएंगे कि मुझे करना क्या है और मुझे इस बीमारी से कैसे लड़ना है। साइकोलॉजी पॉजिटिव रखनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आपको अगर ये बता दिया जाए कि बीमारी चाहे पहले या दूसरे स्टेज की है कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है, जो कि एक गलत जानकारी है, तो शायद आप पॉजिटिव साइकोलॉजी रखते हुए भी आप घर वापस चले जाएंगे कि मुझे फिर इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम सही नॉलेज का भी होना उतना ही ज़रूरी है। सर बहुत सारे लोगों में ये एक टेंडेंसी रहा है कि जब तक एक बीमारी सीवियर केसेस तक ना हो तब तक डॉक्टर तक नहीं जाते। तो हाउ इम्पोर्टेंट कि अपना हेल्थ चेकअप हम रेगुलरली करें, ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तभी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और इसी वजह से इस एरिया में जितने कैंसर आते हैं उसमें जो एडवांस कैंसर जो होते हैं काफ़ी फास्ट मेजॉरिटी में होते हैं। लोग काफ़ी मतलब महीनों तक अपना सिम्टम या तो लेकर बैठे रहते हैं या फिर
छोटी मोटी दवाइयाँ या फिर उनका प्रॉपर जांच नहीं हो पाता है, उनका इलाज नहीं हो पाता है। और ये बहुत कॉमन है। पिछले साल हम लोग जांस्कर वैली में गए हुए थे और वहाँ भी यही कंडीशन है कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने से प्रॉब्लम चले जा रही है, लेकिन वो सही जगह पर तक पहुँच नहीं पाए या फिर उन्होंने उस हद तक कोशिश नहीं की उसके लिए। और इसका सिंपल कारण ये है कि लोगों के में अवेयरनेस की कमी। जिस चीज़ के बारे में आपको पता है कि अगर मुझे कहीं से खून आ रहा है या कहीं से कोई घाव लगातार बढ़ते जा रहा है तो हो सकता है वो कैंसर हो, तो शायद मैं 4 महीने 5 महीने के लिए वेट नहीं करूँगा, मैं तुरंत जाना चाहूँगा। लेकिन अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे लगेगा कि ये तो छोटी मोटी कोई बीमारी है, शायद अपने आप ठीक हो जाएगी, या मैं पास की दुकान से दवा लेके खा ले करूँगा, शायद डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊँगा। और यही कारण है कि काफ़ी हद तक लोग सिम्टम्स को नेगलेक्ट करते रहते हैं। तो जब तक लोगों में सिम्टम के बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये कंडीशन शायद चेंज नहीं होगा। ये बात तो सही है कि जितनी जानकारी और जितनी नॉलेज दोनों साइड से, जनरल पब्लिक में के लिए भी और यहाँ के फिजिशियन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो किसी को दूसरे कुछ और समझ कर ट्रीट नहीं कर सकें जो कि वाकई एक्चुअली कैंसर का है।